Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear friends, today, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, so in the beginning today, I will just give you a bit of introduction of spoken English phrases. We're going to today cover 30 spoken English phrases which are commonly used by the native speakers, and the language looks valuable, matchless, and sometimes you can't understand it because they are using certain phrases. I know that there is a big role of reductions and contractions in spoken English, but phrases are also frequently used by the native speakers. The way we use phrases, Punjabi or Urdu phrases in our language, similarly they have the certain usage in the language. So we'll try to just capture 30 hot, burning, wonderful phrases, and you will just learn them. We are going to learn their meaning in English and meaning in Urdu as well, because we are learning sometime bilingually and sometime monolingually. Bilingually means we are actually our language, mother tongue is not English, so we are learning English with the help of L1. We are learning L2. L1 is our first language, that's Urdu or Punjabi, whatever, or maybe you are from Sindh, it's Sindhi, it's your mother tongue, it's your L1, or but normally we are living in Pakistan, the L1 is Urdu, because Urdu is our national language. So we are trying to learn sometime L2. L2 is the target language. So with the help of L1, similarly, we'll learn the phrases and its English meaning, and then its Urdu meaning, and then afterwards we'll try to just use that phrase in sentence. That's the most valuable part, because if you know how to use certain phrases in the target language, it means you have understood it, you've known about it. You can now reproduce the phrase in your own language, in your own sentence. So we'll give you also crispy, crunchy little sentences, intelligent sentences in which they are also used. So you are going to contribute in the class today. Are you ready? Yes. Fantastic. Thank you very much. And we're going to start today. So the phrases, the first two phrases, we have equally distributed two phrases to all the students, the boys and the girls, and they are going to reproduce it right now. The first phrase would be, yes, Get out of hand. get out of hand. हाथ से बाहर निकल जाना, मतलब उर्दू मीनिंग में इसका मतलब कुछ ऐसे बनता है, हाथ से बाहर निकलना, right? Yes. Its English meaning is to become out of control. To become out of control, हाँ, काबू से बाहर हो जाना. To get out of hand, के you know sometimes situations ऐसी होती हैं कि आप कुछ चीजें आपके हाथ से बाहर हो जाती हैं, आपके इख्तियार से निकल जाती हैं, कंट्रोल से. So get out of hand. Yes, please. Sentence, please. Now its sentence is the situation got out of control, out of hand quickly. The situation got out of hand quickly. Situation जो है वो out of control हो गई बहुत ही जल्द. My second phrase is burn bridges. To end our relationship, its Urdu meaning is Burn bridges. Fantastic. पुलों को जला देना. Right. इस उर्दू मीनिंग is ताल्लुक खत्म करना. ताल्लुक खत्म कर देना. देखिए एक ताल्लुक भी ब्रिज की तरह होता है, दो अफराद को जो मिलाता है. So burn bridges. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि तर्क ताल्लुक कर देते हैं. They burn the bridges. उसने कहा था शायर ने कि तुम तर्क ताल्लुक का कहीं जिक्र ना करना, क्योंकि लोगों को तो पता है हम दोस्त हैं, बट अब तो दोस्ती खत्म हो चुकी है. तुम तर्क ताल्लुक का कहीं जिक्र ना करना, मैं लोगों से कह दूंगा कि फुर्सत नहीं मिलती. ये जस्टिफिकेशन भी तो देनी है ना.
रीजन भी देनी है कि टाइम नहीं साढ़े को होंदा ना, इस वास्ते ਅਸੀਂ मिल नहीं पा रहे, अदरवाइज ऐसी गल को नहीं, साढ़े आपस में ताल्लुकात बहाल ने। सो burn bridges, कितना शानदार है, burn bridges। Let's use this phrase in a sentence. Don't burn bridges with your old friends. हाँ, क्रोनीज के साथ अपने ताल्लुकात को नहीं खत्म करना। Don't burn bridges with your old friends because old is gold। और जितना ओल्ड होता जाता है उतना वैल्यूबल हो जाता है बंदा, राइट? शाबाश इनके लिए, वेरी गुड, शाबाश। My first phrase is see eye to eye. It's See eye to eye. see eye to eye, see eye to eye, okay? Its English meaning is हाँ, to agree with someone. see eye to eye, आंख के साथ आंख मिलाना, मतलब ये हुआ किसी के साथ इत्तेफाक करना, to agree, With someone. to agree with someone, okay? Its Urdu meaning is किसी के साथ इत्तेफाक करना. किसी के साथ, किसी से इत्तेफाक करना। Yes. It's now it's let's use this in a sentence. They don't always see eye to eye on issues. हाँ, don't always, ये आपके लिए, they don't always see eye to eye on issues, जो मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, दोनों उसमें हमेशा इत्तेफाक नहीं करते, Yes. मतलब इख्तलाफ रहता है। लेकिन इख्तलाफ ऐसा होना चाहिए, और इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब इख्तलाफ मुख्तलिफ आप हैं, ओपिनियंस में इख्तलाफ होता है, आरा में इख्तलाफ होता है, और इट्स क्वाइट नेचुरल टू हैव डिफरेंस इन ओपिनियंस। और कैसे हो सकता है कि सारे लोग एक ही तरह से सोचती हों? बाग में जाएं तो क्या सारे फूल एक जैसे होते हैं? लेकिन कितनी सजावट बनती है उन तमाम फूलों के रंगों से। गुलहाए रंग रंग से है जीनत चमन, चमन की जो खूबसूरती है, जीनत है, वो मुख्तलिफ रंगों के फूलों से होती है। गुलहाए रंग रंग से है जीनत चमन, और उसका अगला मिसरा क्या है वो मैं भूल गया हूँ। मैं मिसरा बनाता हूँ कि अगला मिसरा मैं भूल गया हूँ, ये भी उसका अगला मिसरा ही है। जो इख्तलाफ से ही खूबसूरती होती है। ओके, ग्रेट। Now my second लेकिन phrase. वो इख्तलाफ रहना चाहिए, वो लड़ाई नहीं बनना चाहिए, मुझे लड़ाई ना बने वो। शाबाश। Now my second phrase is throw in the towel. Throw In the towel. in the towel, towel नहीं कहना, ये towel है। जैसे बाउल नहीं होता, बाउल होता है ना, बाउल, BOWL, बाउल, towel, और ये yes that's towel। Its English meaning is to give up. Throw in the towel, तौलिए में फेंक देना, मतलब ये है to give up, हार मानना। Its Urdu meaning is हार मानना. जब बाज़ औक़ात जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा होता है, आप पता चल रहा होता है कि आपका टोटल थोड़ा है और वो जा रहे हाना बैटिंग कर रहे हैं, आप 5-7 ओवर के बाद उठ के चले जाते हैं, आप गिव अप कर देते हैं। यू थ्रो द मैच इन द टॉल, आप उसके बाद बस पता तो लग गया है मैच का रिजल्ट की है, एवं खून साड़ना बह बह के उठे। सो इट आल्सो हैपेंस लाइक दैट। Okay, great. Now let's use this phrase in a sentence. After several attempts, he finally threw in the towel. After several attempts, काफी सारी कोशिशों के बाद, he finally threw in the towel, उसने हार तस्लीम कर ली, हार मान ली। लेकिन ये देखिएगा, आपको बहुत सारी दुनिया में एग्जाम्पल्स ऐसी मिलती हैं कि कुछ लोग हार नहीं मानते, वो कोशिश करते रहते हैं और बिलाखिर जीत जाते हैं। पता है ना आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में ऐसी मिलेंगी, कुछ जिन्होंने ट्राई किया फिर ट्राई। अब आइल्स को ही ले लीजिए, अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने रिक्वायर्ड बैंड हासिल नहीं कर सकते, तो क्या दे मस्ट थ्रो इन द टॉल, दे मस्ट गिव अप। उसका जरूर क्या वो गिव अप करते हैं? वो नहीं, दे हैव टू रजिस्टर अगेन, अपने आप को दोबारा रजिस्टर करें। वैसे 90% ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स, 90% माशाल्लाह, अ बिग नंबर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिक्वायर्ड बैंड हासिल करते हैं, और 50% तो डिजायर्ड बैंड हासिल कर लेते हैं। मतलब रिक्वायर्ड बैंड आपके हो सकते हैं 4.5, मिसाल दे रहा हूं, आपका B1 लेवल आपने अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है, ये आपका रिक्वायर्ड बैंड है। लेकिन डिजायर्ड क्या कहते हैं, यार कुछ 6.5 आना तो मजा आ जाएगा, या 6 आए ना छक्का मारूं मैं,
तो वो फिर ये क्या होता है कि उनको उनको वो जो वो मांगते हैं उनको मिल जाता है। और बाज़-औक़ात आप अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर दे देता है। इंसान जो है कोशिश करनी ज़रूरी है असल में। माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल ना लावे या ना लावे। इसमें मालिक का काम होता है, अपनी आप एफर्ट पूरी करते हैं, फिर आगे जो काम है सारा अल्लाह परवरदिगार जो है वो देखता है कि उसने आपको किस तरह से नवाजना है। बाज़ औक़ात आपको वैसे नहीं नवाजता जैसे आप चाह रहे होते हैं। इशफाक अहमद कहते हैं, बाबा जी उर्फ़े आम में जिन्हें हम कहते हैं, वो कहते हैं कि आप बाज़ औक़ात एक सेब खाने के लिए मरे जा रहे होते हैं कि या कहीं मुझे मिल जाए ना सेब, ये तो मैं कमाल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक की प्लानिंग में आपके लिए सेबों का टोकरा होता है। तो अल्लाह ताला कुछ ज्यादा बढ़कर आपको देना चाह रहे होते हैं, तो आपको तो पता ही नहीं है अल्लाह की मशीयत क्या है, अल्लाह की मर्जी क्या है। तो हम फिर क्या करते हैं, वो लोग ही कामयाब है जो राजी बरजा हो जाते हैं, जो अल्लाह की मर्जी में, मशीयत में, रजामंदी में ही खुश हो जाते हैं। वेरी गुड, शाबाश, फैंटास्टिक। नेवर थ्रो इन द टॉल, यू हैव टू कीप वर्किंग। आपको मेहनत करते रहना है और कभी भी हार नहीं माननी। ऑलराइट, My first phrase is bend over backward. To try very hard. ऑलराइट, बहुत मेहनत बेंड करना। ओवर बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ झुक जाना। बैकवर्ड्स इसका मतलब उर्दू लिटरल मतलब ये बनता है, लिटरल। एक होता है लिटरल मीनिंग, एक होता है फिगरेटिव मीनिंग। लिटरल मतलब पीछे की तरफ मुड़ना, झुकना, राइट। लेकिन इसका फिगरेटिव मतलब है बहुत मेहनत करना, राइट। सो वर्क रियली वेरी वेरी हार्ड। जी, Now use this phrase in ट्राई sentence. वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना, इसका मतलब यह है। She bent over backward to make him comfortable. She bent over backwards, उसने बहुत मेहनत की, bent हो गया ना सेकंड फॉर्म। To make him comfortable, उसके लिए, उसको आरामदेह बनाने के लिए, उसको पुरसकून बनाने के लिए, उसको पीसफुल बनाने के लिए, राइट। आप ये भी कह सकते हैं, she bent over backwards to pass her IELTS with desired band scores. उसने desired band scores हासिल करने के लिए शदीद मेहनत की। शाबाश। My second phrase is the ball is in your court. गेंद आपकी अदालत में है। The ball नहीं, ball, T-A-L-L, not tall, tall, B-A-L-L, ball, tall, M-A-L-L, mall, not mall road, mall, shopping mall, right? Dolphin Mall. Have you been to Dolphin Mall yet? Oh my, me too. I couldn't go there. It's set to be operational now. Okay, great. Now English meaning is it's your decision. हाँ, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अक्सर बोलते हैं भाई बॉल तो आपकी कोर्ट में है, अब मतलब आपके ऊपर सारी बातें हैं। मैं यही कहूंगा कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपकी कोर्ट में बॉल है, मतलब फैसला आपका है। Urdu meaning is फैसला आपका है. Now use this phrase in sentence. I've given my opinion. Now it's ball is in your court. I have given my opinion, मैंने अपनी राय दे दी है। Now the ball is in your court. अब बॉल आपकी कोर्ट में है। Fantastic, great. Are you enjoying the phrases? Yes. All right. So whenever there are presentations held in our institution, you know, spoken English presentations, you have to use these phrases as well in your, और रेहान तो यूज करते हैं, इनके बारे में क्लैपिंग कर दीजिए रेहान के बारे में। All right. And the first phrase is blow off steam. Its English meaning is to release stress, and its Urdu meaning is तनाव दूर करना. जी, तनाव को दूर करना, blow off steam, blow off क्या होगा? blow, B-L-O-W, blow, O-F-F, अच्छा O-F-F ऑफ होता है, और O-F ऑफ नहीं होता, वो ऑव होता है, वाव की साउंड होती है, ऑव,
a great deal of. I want to tell you something about something of him. Of. Right? Of. So it's not off. OWS is off. Blew off. बुझा देना. Steam को बुझा देना, खत्म करना. मतलब क्या हुआ? To release stress इसका मतलब है, इसका figurative मतलब है to release stress, तनाव को, stress को दूर कर देना. Right. The phrase into sentence is I went for a run to blow off some steam. I went for a run. मैं थोड़ी देर के लिए मतलब वॉक करने के लिए गया, जॉगिंग करने के लिए गया. To blow off some steam, थोड़ी सी स्टीम को कम करने, तनाव को कम करने के लिए गया. Right. The second phrase is get cold feet. Its English meaning is to feel nervous or scared. To get cold feet. Get हासिल करना, cold ठंडे पाँव होना. मतलब ये है कहते नहीं पाँव उसके हाथ पाँव ठंडे हो गए. आपने उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं. मतलब पसीना उसको आ गया, मतलब उसने खौफ या घबराहट महसूस की. तो ये to get cold feet means घबराहट महसूस करना. Feel nervous or scared, डरा हुआ या nervous महसूस करना अपने आप को. सेंटेंस बनाइएगा इसका प्लीज. The phrase into sentence is she got cold feet before the big presentation. She got cold feet before the big presentation. बहुत बड़ी presentation, बहुत बड़े स्टेज पे presentation थी, उससे पहले उसके हाथ पांव ठंडे हो गए. उससे पहले मतलब it happens, speaking is an art. और ऐसे ही है जैसे बहुत बड़ी को आपके पास कुछ स्किल है, और ऐसे जैसे आपने फाइट करना है, आपने जाकर स्टेज के ऊपर, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो भी they have stage fright. They encounter stage fright. वो भी सामना करते हैं stage fright का. Means they can't speak on stage, without any preparation sometime, or even with preparation they can't speak. बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो it's quite normal, it's quite natural. It's not everybody's job to speak confidently and fluently about various topics on stage. ये possible नहीं हो सकता इंसान. तो लेकिन ये है कि we are actually giving you a lot of training and practice here at the platform of Genius Institute, and you are actually doing a great job by giving presentations and taking part in the conversation and practice as well. Please, very good. Job done. Now, give it back to the girls. No, it's your turn now. Yes, please. 1, 2, 3. Yes, there we go. It's your turn now, please. My first phrase is a blessing in disguise. A blessing in disguise बहुत commonly use होता है. A blessing in disguise, right? Its English meaning is something good that isn't first recognized. हाँ, जो disguise होता है छुपा हुआ होना, right? Blessing एक नेमत है, एक रहमत है, लेकिन छुपी हुई है. मतलब उसका इदराक नहीं है आपको. वो पंजाबी में कहते हैं कुब्बे नू लत पे तो कुब्बे का कुब्ब निकल गया. अब कुब्बा था ना, कुबड़ा था, तो उसको किसी ने टांग मारी, बड़ी बदतमीजी की उसके किसी ने उसके साथ, लेकिन उसके साथ भलाई ही उसको कुब्ब निकल गया. तो मतलब ये है कि सम टाइम लगता है ऐसे ही है, हालात के ब्लो पड़ते हैं आपको, थपेड़े पड़ते हैं, आप समझते लॉ जी मैं गया, लॉ जी पता नहीं की हो गया, लेकिन नहीं. लेकिन ये है कि अल्लाह ताला आपके लिए उसमें भी बेहतरी रखता है, और आपको उसके अनएक्सपेक्टेड आपको उसके नताइज मिलते हैं. सो द फ्रेज है हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मतलब उर्दू में हुआ छुपी हुई नेमत. समथिंग गुड, कोई चीज बड़ी अच्छी है, दैट isn't recognized at first, जिसको शुरू में आप पहचानते नहीं है, होती नेमत है आपके लिए. जी, आप देखिए जो गोली होती कड़वी होती है,
आप खाते हैं ना गोली, अगर आप वो जो टैबलेट है या पिल्स होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, लेकिन उनका नतीजा क्या होता है? अगर आप उसको देखें तो कहीं कड़वी गोली मैं नहीं खा सकता, तो दैट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली। अंदर जाके वो जो है आपको काम डाउन करती है और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, उनको खत्म करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। यस प्लीज। Losing that job was a blessing in disguise. लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमारे एक दोस्त बैठे हुए यहाँ, उन्हें जॉब कर रहे थे कोरोना से पहले, तो वो जब कोरोना आया तो जॉब्स में लोग नॉर्मली करते हैं, जो जॉब्स होती हैं लोगों की बहुत सारी ख़त्म हो जाती हैं और कंटिन्यू नहीं रहती बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, कंपनीज इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन। तो इन्होंने क्या किया, सो ही स्विच्ड, और उन्होंने स्विच किया और ही वेंट फॉर द प्रॉपर्टी गेन के लिए ये चले गए। इन्होंने प्रॉपर्टी के साथ जो है वो इंटरेक्शन किया, पर बिकेम प्रॉपर्टी एडवाइजर। माशाल्लाह ही सेटल्ड नाउ। अब कभी भी इनसे कहा जाए कि आप दोबारा जॉब करने चाहेंगे सर आप? नॉट एट ऑल, नेवर एवर। राइट, थैंक यू। My second phrase is throw caution to the wind. Throw caution to the wind. Throw caution, फेंक देना। caution एक caution होता है मोहतात रहने के लिए कह देना। किसको? टू द विंड, हवा को मोहतात होने के लिए कहना। Its English meaning is to take risk. इसका इंग्लिश में जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मतलब बनता है टेक अ रिस्क। थ्रो कॉशन टू द विंड मीनिंग इज टेक अ रिस्क, रिस्क लेना, खतरा मोल लेना। राइट। He threw caution in the wind and invested in stocks. He threw caution to the wind, उसने खतरा मोल लिया, and invested in stocks, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आजकल बूम कर रही है। ये ऐसे ही लोग हैं जो, और आपको पता है कि खतरा मोल लेना जो है ये कितना जरूरी है। लेकिन होता खतरा ही है, मतलब आर या पार, लेकिन ये है कि खतरा मोल लेने से ही इंसान बिजनेस कर सकता है, उससे ही कामयाबियां मिलती हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको आईएलटीएस करना पड़ेगा, खतरा मोल लिया आपने, आकर अपना टाइम देना पड़ेगा, कुछ थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी एग्जाम के लिए, फिर उसके बाद फिर आपको एम्बेसी के लिए जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। खतरा मतलब काफ़ी आप उसमें टाइम कर रहे हैं, दे रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिर आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता है। लगता भी उन्हीं का जो खतरा मोल लेते हैं। और अगर आप घर में बैठे कहीं याला मेरा वीज़ा लग जाएगा, याला मेरा वीज़ा लग जाए, याला में दुआएं करते रहें, हाजात मनाजात करते रहें, तो क्या ये अल्लाह ताला का उसूल है, अल्लाह की सुन्नत है कि घर बैठे बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी इकदाम को किए आपको तमाम नेमतें बैठ मिलती चली जाएंगी? नो। अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की, मेहनत की, सही की। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप समटाइम यू मस्ट थ्रो कॉशन टू द विंड एट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ये लोग अब क्या है, इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड होता है उनका पता है मैंने ये स्टॉक में करूंगा, ये चल रही है, स्ट्रेन चल रही है, प्राइसेस इसकी बढ़ रही हैं, तो मैं इसमें करूंगा, पीछे उसकी। बहुत सारे एनालिस्ट भी होते हैं, और आजकल तो एआई ने बहुत असिस्ट कर दिया है, आसान कर दी जिंदगी। वो आपको बता सकता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इसमें ना करो, क्योंकि आपके पास पिछले 10 साल की हिस्ट्री उनसे निकाल लें, आपको आइडिया हो जाएगा उसका। तो इस तरह से चीजों को मॉनिटर किया जा सकता है और कैलकुलेटिव रिस्क लिए जा सकती हैं। शाबाश। My first phrase is bite off more than you can chew. ओ माय गॉड, बाइट ऑफ, एक बाइट ले लेना किसी चीज की, मोर देन यू कैन च्यू, उससे ज्यादा जितनी आप च्यू कर सकते हैं। मतलब ओ माय गॉड, Its English meaning is to take on too much. टू टेक ऑन टू मच। Its Urdu meaning is अपनी काबिलियत से ज्यादा काम करना. अपनी काबिलियत से ज्यादा काम करना। हम ही भर लेते हैं कि जनाब ये मैं ऐसे कर दूंगा, लेकिन आपकी वो पहुंच ही नहीं है, रसाई नहीं है आपके पास। तो ये होता है to bite off more than you can chew,
अपने चबाने से ज्यादा, आपको पता है आपको नवाला एक खास होती है, एक पोर्शन होता है या क्वांटिटी होती है जिसको आप च्यू कर सकते हैं बाइट को। तो अगर आप अपनी औकात से ज्यादा मुंह में ठोंस लेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। मतलब वो तो यही है कि जो पेटू लोग होते हैं वो तो बहुत खाते हैं, और लेकिन ये है कि उनको नहीं हर्ज पड़ता कि मैंने जो है वो 5 नान खाए हैं कि 10 खाए हैं कि 15 खाए हैं। वो एक बंदे ने उसको किसी को 17 नान दी, उसने कहा तुम मुझे पागल समझते, जाहिल समझते हो, उठा लो मतलब ऊपर वाले 2 उठा लो, बाकी 15 रहने दो, मतलब ये है। तो अब वो 15 नान खाने की तैयारी कर रहा है। तो अंदाजा कर लें, ये होता है टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अपनी काबिलियत औकात से ज्यादा किसी काम को अपने सपुर्द ले लेना। Now let's phrase is used in sentence. Don't bite off more than you can chew with this project. My second इस phrase. मंसूबे के साथ अपनी काबिलियत से ज्यादा काम ना करो। शाबाश। My second phrase is every cloud has a silver lining. Oh my God, every cloud has a silver lining। बहुत शानदार है, इस्तेमाल बहुत होता है कि हर जो है वो काले बादल के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको एक सिल्वर लाइनिंग, मतलब जो बुरे हालात में भी कोई ना कोई अच्छी स्ट्रीक्स नजर आ रही होंगी आपको, राइट? तो एवरी क्लाउड हैज इट्स लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। Its English meaning is there's something good in every bad situation. हाँ, हर बुरे में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। शाबाश। Its Urdu meaning is हर बुरे में कुछ अच्छा होता है। और वैसे भी अगर आप कुरान मजीद की तालीमात को देखें ना तो उसमें भी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मअल उस्र युस्र फ़इन्ना मअल उस्र युस्र, हर मुश्किल के बाद आसानी है। और हर मुश्किल क्या, यकीनन हर मुश्किल बाद, हम मुश्किल आती है तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ऐ की हो गया है, लेकिन फिर जब आसानी आती है तो फिर भूल जाते हैं। असल में मुश्किल वक्त होता है सब्र करने का, हौसला करने का, और जब आसानी आती है तो वो शुक्र करने का मतलब होता है। तो हमने, अल्लाह ने तो असल में हमें सब्र और शुक्र की तलकीन की है। और आप देख लीजिए सब्र का जज़ा पता क्या है? जन्नत। एक तो ये इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दूसरा कुरान मजीद में है, सूरह बकरा में है कि वाइज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पे, जब मेरे बंदों पर जब मुसीबत कोई आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब कुछ अल्लाह के लिए है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसकी तरफ ही लौट कर जाना है हमने। और फिर अल्लाह ताला आजमाता है इंसानों को। कुरान जी आगे आयात में कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात। आखिर में कहते हैं वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दो, खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह कैसे आजमाएगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ, आपके दिल में खौफ आएगा फ्यूचर का, चीजों का, खाने का, और पता नहीं क्या हो जाएगा। वलजू, और आपको अल्लाह ताला आजमाएगा भूख के साथ, प्यास के साथ आजमाएगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्सिम मिनल अम्वाल, और आपके माल घाटे पड़ेंगे, उनको पैसे जो है वो नुकसान होंगे बड़े बड़े आपके। नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी, और आपकी जाने, प्यारे लोगों की जानें चली जाएंगी। बहुत सारे जिनके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते जिंदगी गुजारना, वो भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, और फल और जो रहमतें हैं और नेमतें आपको अल्लाह ने दे रखी हैं वो आपकी कमी हो सकती है उसमें। लेकिन जो बंदे क्या है, वबश्शिरिस साबिरीन, और लेकिन बशारत दे दो, खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। इन तमाम मामलात में जो सब्र करेगा, खुशखबरियां फिर उसके लिए आएंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला देगा। दुनिया में जो मुश्किलात करेगा, बर्दाश्त करेगा, अल्लाह आखिरत में उसके लिए बहुत आसानी और कामयाबी रखेगा इंशाअल्लाह। तो ये बड़ी जबरदस्त एक हिकमत अमली है जी। क्या है आपका फ्रेज, क्या था? Every cloud has. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। शाबाश। क्या हर क्लाउड के अंदर सिल्वर लाइनिंग होती है? Now let this phrase is used in sentence. Don't worry, every cloud has a silver lining. ठीक है, डोंट वरी, परेशान ना हो। वो शायर ने कहा था कि तो क्या कहा था, उसने कहा था कि बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़ी खूबसूरत बात, मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा हूँ ये कह के आपको, बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था सुबह लंबी है
गम की शाम, मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। और दिल मायूस तो नहीं, नाकाम ही तो है। मायूस नहीं होना। और एक और फिर शायर ने कहा था, तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, जिगर। तूले शबे फिराक मतलब जुदाई की लंबी गम से परेशान नहीं होना। तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। मतलब हर शाम के बाद सवेरा आना है, रात के बाद, अंधेरे के बाद उजाला आना है। अंधेरा उजाला देखा हुआ आप लोगों ने? आप बूढ़े लोगों ने देखा होगा, नौजवानों ने नहीं देखा होगा। और राइट, थैंक यू। Okay. नेक्स्ट जी, आपकी शाबाश, बहुत अच्छी। ये इन फ्रेजेस के अंदर लाइफ है, देखिए कैसी। और ये जो फ्रेजेस बनती है ना, और आप देखिए जो प्रोवर्ब्स बनते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावतें, ये सदियों की जो दानाई है उसको निचोड़ होता है, उसका निचोड़ होता है, सदियों की दानाई का। ये ऐसे नहीं। और मैं जब देखता हूं ना सदियों की इंसानों की दानाई का निचोड़ जहां है, मैं देखता हूं कुरान मजीद में पहले वो बात मौजूद होती है। इंसान मेहनत कर करके जिस चीज में पहुंचता है, अल्लाह पाक ने पहले दिया वो कानून, उसूल, ज़ाब्ते। इसलिए दुनिया की जो बेहतरीन किताब है ना, दैट्स इट कुरान मजीद। वो आपका हॉली कुरान, ग्लोरियस कुरान है। इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हम कह रहे हैं। आप देख लीजिए, आप पढ़ के देखिए जरा, आपको ऐसी सच्चाइयां और सदाकतें और हकीकतें नजर आएंगी। आप कहिए यार ये भी आयत मेरे साथ जुड़ी हुई है, ये भी आयत मेरे साथ जुड़ी हुई है। आप कितना परेशान होते हैं कि यार पता नहीं है ठीक है कि नहीं ठीक है। तो बात ठीक है, तो कुरान मजीद क्या कहता है जब ये मसला है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, मुझे पता नहीं चल रहा। मेरा नॉलेज तो लिमिटेड है इंसान का, और वो जो खालिक मालिक कायनात है उसका नॉलेज अनलिमिटेड है, उसको सब पता है। वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी, उसकी बादशाहत जमीन व आसमान पर फैली हुई है। उसकी बादशाह कुर्सी, उसकी मतलब उसकी बादशाहत, मतलब कोई चीज मख्फी नहीं है। दिल में आने वाला ख्याल तक तो वो जानता है, तो क्या चीज छुपाएंगे आप उससे। इसलिए कोई भी बुरा ख्याल आता है फौरन चटक दिया करें उसको, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह ख्याल भी। और कहते हैं ख्याल से उसका कोई गुनाह नहीं होगा। यकीनन सोच आती है, ख्याल आता है, बहुत उसकी पकड़ नहीं है। लेकिन वो ख्याल जो आप सोचते हैं जिसके बारे में, उससे हंस उठाते हैं, एंटरटेन होते हैं उससे, बार बार सोच सोच के उसको, उस पर पकड़ होगी। वो तो ये होता है कि बुरा ख्याल आया, झटक दिया, आगे निकल गए, उस पर कोई पूछताछ नहीं होगी आपसे। जी नेक्स्ट जी, शाबाश। My first phrase is hit the jackpot, meanings to have great success, and Urdu हिट meaning द is जैकपॉट, जैकपॉट को हिट करना, वाओ। टू हैव ग्रेट सक्सेस, बड़ी कामयाबी हासिल करना। जी, Urdu meaning is बड़ी कामयाबी हासिल करना, and sentence is he hit the jackpot with his new business. हाँ, उसने अपने नए कारोबार के साथ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, शाबाश। And मैं हिट द जैकपॉट, बड़ी कामयाबी हासिल। हमारे जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, एक्चुअली दे वांट टू अर्न इन डॉलर्स एंड पाउंड्स एंड यूरोज, तो दे वांट टू हिट द जैकपॉट। वो चाहते हैं कि जनाब बड़ी कामयाबी मिले उन्हें, और उसके बाद फिर जो है वो अपनी तमाम जो दुनियावी जरूरतें हैं उसके साथ पूरी कर सकें और ख्वाहिशें पूरी कर सकें। जी, And my second phrase is keep your fingers crossed, meanings to ये बहुत have जबरदस्त है। for कीप good योर luck. फिंगर्स क्रॉस्ड, बिजनेस वर्ड में बहुत इस्तेमाल होता है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब सिंपली इस वक्त भी होता है तमन्नाएं। जी, नेक मतलब तमन्नाएं। पुरुमीद रहते हुए इंतजार करें। हेलो, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसे होता है। मतलब आप कहते हैं यार, I'll let you know about the job availability and job in our company, but in the meantime keep your fingers crossed. मैं बताऊंगा आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास कंपनी में मौजूद है, but in the meantime keep your fingers crossed, मतलब इंतजार कीजिए ऑप्टिमिस्टिकली, नेक तमन्नाओं के लिए ये बात की गई है, शाबाश। Okay, sentence is keep your finger crossed for good result.
हाँ, कीप योर फिंगर्स क्रॉस फॉर गुड रिजल्ट्स, अच्छे नताइज के लिए इंतजार कीजिए। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कितना शानदार है, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। जी, My first sentence is let someone off the hook. लेट समवन ऑफ द हुक, हुक से उतार दो, लेट समवन ऑफ द हुक, Its English meaning is to not मतलब hold. उसको टांग के ना रखो, उसको हुक से नीचे उतार दो किसी को। मतलब ये है, क्या है? Its English meaning is to not hold someone responsible. किसी को जिम्मेदार ना महसूस करो, नॉट होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल, And its Urdu meaning is किसी को माफ कर देना. किसी को माफ कर देना। वेरी गुड। The use of this phrase in sentence is he was let off the hook this time. He was let off the hook this time, इस बार उसे माफ कर दिया गया। मतलब यह है कि नेक्स्ट टाइम उसको माफी नहीं मिलेगी। एक ही जब जुर्म बार बार आप करेंगे तो फिर हाँ जी, फिर मुश्किल हो जाता है। सो लेट समवन ऑफ द हुक मीन्स नॉट टू होल्ड सम रिस्पॉन्सिबल। एक ऑफिस रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, तो रिस्पॉन्सिबल ये भी होता है, कोई जिम्मेदार शख्स है, ऑफिस में बैठता है, तो एक फर्द आया, कहने लगा ऑफिस में काफी लोग बैठे, कहने लगा कैन आई सी एनीबॉडी हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार किसी शख्स से बोला जाए, तो एक बंदे ने कहा सर माय दिस कलीग सिटिंग विद मी इज रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहा हाउ कैन यू जस्टिफाई इट, क्या मतलब कैसे रिस्पॉन्ड? उन्होंने कहा व्हेनेवर एनीथिंग बैड हैपेंस इन द ऑफिस माय बॉस ऑलवेज सेज टू हिम जेंटलमैन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो वो किसी और तरह से उसको बता रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन, My next phrase is read between the lines. रीड बिटवीन द लाइन्स, बैन सतूर पढ़ लेना, अंदर छुपी हुई बात को भी, जैसे होते हैं ना ये वालिदैन होते हैं या साथी होते हैं, दे आर हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। हाँ जी, बहुत अंदर में छुपी बात को ढूंढ लेना। जी, Its English meaning is to understand the hidden meaning. टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। And its Urdu meaning is पोशीदा मतलब समझना. And the use of this phrase in sentence is you need to understand between the lines of this message. You need to read between the lines of this message, of his message. उसके मैसेज के अंदर जो छुपा मतलब उसको समझने की कोशिश करो, वो क्या कहना चाहता है आपको। Alright, so try to उसने कहा excuse me, I cannot live without you. So what does it mean? He can live without you. नहीं, it means he loves you. इसलिए उसने कहा I cannot live without you. My life will be meaningless without you. What does it mean? Alright, समझ गए हैं ना between the lines क्या मतलब है उसका? जी जी, between the line बड़ा समझते हैं आप, माशाल्लाह। बैन सतूर मतलब को समझते हैं, जो अंदर छुपा हुआ मतलब होता है। जी सर। My first phrase is to be on the same page. Meaning, टू बी ऑन द सेम पेज, बहुत हमारे पॉलिटिक्स में बहुत कॉमनली यूज होता है कि यू नो द पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी एंड द एस्टेब्लिशमेंट आर ऑन द सेम पेज दीज डेज। राइट, टू बी ऑन द सेम पेज। शाबाश। in Urdu, its meaning is मुत्तफिक होना, जी, and in English, to agree something. टू एग्री ऑन समथिंग, किसी चीज पर इत्तेफाक कर लेना, और बी ऑन द सेम पेज। And sentence is father and sons are on the same page. हाँ, the father and the son regarding the marriage issue are on the same page. अब्बा जी थे, पुत्र कोई मुत्तफिक है, बस अम्मी का मसला है, उनको प्रॉब्लम है कि आप पुप्पो के घर नहीं, मैं तो वो कहती खाला के घर में रिश्ता करना है। तो वो जो है आपको पता ही है, यू नो, ये मैं हूँ, ये मेरी फुफियाँ हैं, और अल्लाह का शुक्र यहाँ लड़ाई हो रही है। So sometime it also happens, अब आपको बताना नहीं चाहता मैं, आप लेकिन आप जानते हैं, पता नहीं क्यों इन्नी तो मुन्नी बदनाम नहीं जिन्नी फुफियाँ बदनाम हो गई है, यकीन जानो। जी जी। My second phrase is jump on the bandwagon. Jump on the Bandwagon. bandwagon. Oh, It's jump on the bandwagon. अब bandwagon को जरा देखिएगा, इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है। bandwagon, jump on the bandwagon. in Urdu, its meaning is रस्म और रिवाज की पैरवी करना. To follow a trend. और रस्म और रिवाज की, jump on the bandwagon, जो चल रहे हैं वो कहते हैं go with the flow,
हाँ कि जो चल रहे हैं उन्हें जिन्हें जिधर देखी कुल खुदाई उधर वगैरह टिंगर चाहिए। पंजाबी में कोई फ्रेज है, मुझे उसका एग्जैक्टली मतलब नहीं है। Bandwagon. जी, And in sentence, she jumped on the bandwagon and started using that app. and start using that app. So किसी ने कहा ऐप बड़ी चंगी गिरी है, यूज कर लो। वो क्या है, कैपकट है, कौन सी है जो एडिटिंग की ऐप है? हाँ, वो कहते हैं ये बड़ी अच्छी है, वो ही इस्तेमाल ब्लाइंडली किया जा रहा है। कर्ज लेना, जी, क्या लेना? कर्ज देना। Bandwagon का वो प्यारा लफ्ज़ है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस उसी मैंने माफ कर देना। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। My first phrase is once bitten, twice shy. बहुत अच्छा है। Once bitten, twice shy. एक दफा डसा गया, दूसरी मतलब उसको शर्म आ रही है। मतलब क्या है? Cautions after a bad experience. हाँ, बुरे तजर्बे के बाद मुहतात होना। होना। To be careful, to be cautious after bad experience. कहते हैं भाई once bitten, twice shy. अब किसी ने कहता है एक बारी मेरे हाथ लग गए ने, उनमें दूसरी बार मैं मुहता देगा, तो इसको कहते हैं once bitten, twice shy. शाबाश, बहुत शानदार है। He was once bitten, twice shy about investing. हाँ, he was about once bitten, twice shy about investing. उसने blindly stocks में invest नहीं किया, क्योंकि एक बार उन्हें डुब गए सन पैसे, उन्होंने कहा हुन नहीं मैं आया होन देना। बस मेहरबानी तोड़ी। My second phrase is take it with a grain of salt. Its English meaning Take is it with a grain of salt. Salt के जर्रे के साथ इसको लेना, मतलब यह है its English meaning is don't take it too seriously. don't take it too seriously. किसी चीज को ज्यादा संजीदा ना लेना। Yes. Its sentence is take his advice with a grain of salt. Take his advice with a grain of salt. उन्हें तनु कहते ना सुन ले, करी करी वही जड़ा तेरा दिल चाहता है। इन्हें एडा संजीदा नहीं लेना हैगा। ए बस बाबा जी ने ते कही जाते ने गल्लां नूं कि अब ट्रेंड ना करया करो, इंज ना करया करो, ओ की करना जे बाहर दे मुल्कां च जाके इत्थे खाओ मरो कमाओ। वो होते ना, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो कहते हैं इत्थे जो पाकिस्तान च उन पता नहीं ना इत्थे AQI लेवल जो क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो है वो कहाँ तक पहुंच गया है लाहौर का। तो वो कहते जो भाईजान उन्होंने पूछो वो कहते जो मजा है टिंड च ना शहर च ना पिंड च, मतलब जो आपको इत्थे मिल जाएगा। उनकी किसी हद तक बात दुरुस्त होती, लेकिन अब जो दुनिया चेंज हो गई है, ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, चीजें हमारे अखराजात हो गए हैं कंपैरिजन जब उनको करते हैं डॉलर्स और पाउंड के तरह से, लेकिन हमारी अर्निंग अगर पाक रुपीज में रहेगी तो फिर सफर ही करेंगे ना। वैसे पाकिस्तान में सफर करना भी सफर करना ही होता है, आपको पता है, परेशान होना ही होता है जो हालात हैं यहाँ के। ऑलराइट, आगे चलें। My first phrase is action speak louder than speak. Then words. Action speak louder than words. आपके आमाल जो है आपकी आवाज से ज्यादा ऊंचे होते हैं, वो ज्यादा ऊंची आवाज होती है उनकी। मतलब एक्शंस कहते हैं ना कि आपका जो काम है वो बोलते हैं, आपकी आवाज नहीं बोलते, वर्ड्स नहीं होते आपके जो इम्पैक्ट डालते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट डालती है, इम्पैक्टफुल होती है। शाबाश। Its English meaning what you do is more important than what you say. Its Urdu meaning What you say is more important. What you do is more important than what you say. Right. its Urdu meaning अल्फाज से ज्यादा अमाल अहम होते हैं। जी, थैंक यू जी। Let's use this phrase in the sentence. Remember, actions speak louder than words. हाँ, रिमेंबर, याद रखो कि आपका अमल जो है वो आपके अल्फाज से ज्यादा कीमती है और ज्यादा अहम है। मतलब ये होता है। My second phrase is क्योंकि बात तो कोई भी कर सकता है, किसी भी तरह की बड़े बड़े दावे कर सकता है। ये जनाब एक पार्टी थी, उसने कहा था मैं जी 1 अरब दरख्त लगा दूंगा, पता नहीं कितने हजार डैम्स बना दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, 50 लाख। देखिए ये बड़े बड़े वादे थे, दावे थे, लेकिन एट द एंड हम क्या देखते हैं कि नहीं, वो द प्रॉमिस्ड स्टफ वाज नॉट डिलीवर्ड।
So यही होता है, आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए उतनी बात करें जितनी हो सकती है। इसने बड़े जमीन और आसमान के कलाबे मिला दें आप उसको, जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप सुबह उठेंगे तो हर पाकिस्तानी के गैराज में एक नई कौन सी कार, हाँ उन दसों अपनी अपनी पसंद की कार वो खड़ी होगी। तो कैसे हो सकता है पॉसिबल? ख्वाब तो जब जिस दिन मेरी हुकूमत होगी मैं जनाब वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैं जनाब ये जो आपके गवर्नर्स हाउसेस को गिरा दूंगा, ये कर नहीं मैं ऐसी बात नहीं, मैं जस्ट टॉकिंग अबाउट, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये देखिए इट वाज नॉट डिलीवर्ड। सो बात ये मैं करना चाहता हूँ कि हम अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, किसी फर्द से क्योंकि हम जब सच पर आप यकीन रखेंगे तो अल्लाह आपके साथ होगा। इसलिए परेशान ना हो, टेन भी बचा लांगा अल्लाह ताला। आप बात कर रहे हैं तब उनके इससे डालना नहीं आएगा। हाँ वो हाँ चले प्लीज नेक्स्ट। My second phrase is it's not rocket science. Its English meaning it's not रॉकेट साइंस। अक्सर बोलते हैं यार ये कड़ी रॉकेट साइंस है ये कड़ा मसला है फीसा गौर से निकल बेटा पीछे ये कौन सी ऐसी मुश्किल बात? इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब जो बहुत ही आसान काम उसके इट्स नॉट रॉकेट साइंस। It's English. कहते उससे जाके कहना मेरा नाम लेना वो तुम्हारा काम कर देगा, मैंने डर लग देगा। नो यार क्या बात कर रहे हो, ये बात ही तो करनी है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, जाके बात उससे बताओ उसको, so you will be delivered. Yes please, it's not rocket science. Its English meaning it's not difficult and its Urdu meaning ये मुश्किल नहीं है. And let's now use phrase in the sentence. Fixing this is not rocket science. इसे ठीक करना, फिक्स करना किसी भी चीज को, ये कोई जो रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा बोलो, सादा सा काम जो है आप कहते नो आई कांट डू दैट, भाई जिपर आपका खराब हो गया, आप कहते नहीं मैं उसको अब दोबारा कैसे ठीक कर सकता हूँ, आप कहते यार इसे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा उसको ढीला करो और उसको थोड़ी स्पेस दो, ज्यादा देर कर दो उसकी, और उसके बाद उसको फिक्स कर दो। तो उसके बाद उसको किसी जो आपके पास गैजेट है, प्लास वगैरह है, उसके साथ आप थोड़ा प्रेस करो उसको, तो कहते नो आई कांट डू। अगर इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स इजी पीजी, राइट? ओके। Another sentence is about this phrase. It's not rocket science, just pluck flowers. Just Pluck flowers. हाँ, just pluck flower. Just pluck flower. फूल तोड़ दो। यार तोड़ने वाली बात क्यों करता है? मैं तो जोड़ने वाली बात करता हूँ, आप तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। जी नेक्स्ट जी, शाबाश। The next sentence is put your best foot forward. Put your best foot forward. अपना बेहतरीन कदम आगे रखो। मतलब क्या है? बेहतरीन कोशिश करना, बेहतरीन put your best foot forward to try your best. जी sentence please. Just put your best foot forward in the interview. जी इंटरव्यू में अपनी बेहतरीन कोशिश करो। Just put your best foot forward. अपना बेहतरीन कदम आगे रखो, मतलब बेहतरीन कोशिश करो to win the interviewer by answering the answers with gentle moment, a gentle style, sorry. जी In the same boat. Meaning in the same boat. जी meaning in the same situation. in the Urdu same meaning- situation, एक जैसी सूरत हाल में होना। And the sentence is we were all in the same boat. we are short form है we are की। we are all in the same boat here. हम सारे यहाँ एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, right? in the same boat here, in the same boat, एक जैसे सूरत हाल का सामना करना, right? to be in the same boat. जी The next phrase is let bygones be bygones. let bygones be bygones. जैसे कहते हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, let bygones be bygones. right. माजी को भूल जाना, let bygones be bygones.
Excuse me, yes please. Its English meaning is forget the past. Forget the past, माजी को भूल जाना. Yes. Let's use in the sentence. It's time to let bygones be bygones. It's time to let bygones be bygones. ये वक्त है कि माजी को भूल जाएं और नया आगाज करें ताल्लुकात का. The next phrase is beat around the bush. Beat about the bush या beat around the bush एक ही चीज है, एक ही बात है. Its English meaning is avoid the main topic. Avoid the main topic, असल मौजू से बचना. Right, avoid the main topic. Let's use in the sentence. Stop beating around the bush and get to the point. Get to the point. Stop beating about the bush. Beating around the bush. Thank you. असल मौजू से मत हटिए and get to the topic. Get to the point. और जो असल मौजू उसकी बात करें. जी. My first phrase is make ends meet. Make ends meet. मतलब क्या है? Its English meaning is to manage financially. To manage financially, माली तौर पर संभालना. To manage financially, make ends meet. Its Urdu meaning माली तौर पर संभालना. It's used in sentence. He works 2 jobs to make ends meet. He works 2 jobs to make ends meet. वो माली तौर पर संभालने के लिए दो नौकरियां करता है. Right. Make ends meet. बहुत कॉमन phrases हैं, बड़ी lucrative हैं. You are using it in your day-to-day conversation. Right. My second phrase is kill 2 birds with 1 stone. Kill 2 birds with 1 stone. एक ही पत्थर के साथ 2 शिकार करना. Its meaning to accomplish. जिसे उर्दू में कहते हैं एक तीर से 2 शिकार. Yes. जी. Now it's used in sentence. Walking to the store killed 2 birds with 1 stone. हाँ, walking to the store. स्टोर में चल के गया, उससे क्या हुआ? एक तीर से 2 शिकार हो गए. मतलब 2 birds kill 2 birds with 1 stone. मतलब कुछ शॉपिंग भी कर ली और वॉक करने का जो उसके लिए वॉक करना था, एक्सरसाइज वर्कआउट था, वो भी उसका पूरा हुआ. 2 उसने शिकार किए एक तीर के साथ. जी. Next phrase is steal someone's thunder. Meaning to take credit for someone else's idea. हाँ, वो एक quite recently there was a drama कि जिसमें वो मुस्तफ़ा अगर किसी काम करता है कोडिंग करके किसी एक प्रोजेक्ट पर और बड़ा लुक्रेटिव होता है और वो कुछ कंपनी को देता है, कंपनी वाले खुद उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और कोई फर्द होता है. आपने देखा वो ड्रामा? ऑलराइट. सो वो उसके जो मेहनत का खुद क्रेडिट ले रहा था. उर्दू मीनिंग किसी के आइडिया का क्रेडिट लेना. To take credit of someone else's idea, steal someone's thunder. किसी के थंडर को चुराना, मतलब किसी के बड़े आइडिया को चुराना. Yes. Sentence. Don't steal my thunder by sharing my idea first. हाँ, don't steal my thunder. मेरे आइडिया को चुराओ ना. वो अक्सर मैं कहता हूँ ये सेंटेंस इस तरफ के ये सेंटेंस को तो सर आपने वही जुमला बोली जो मैंने सोचा था. मैं कहा मैंने ख्वाब है तुमने सोचा. तुमने ये सोचा था. कब मैंने ये सोचा तो तुम इतने बदल जाओगे. ओह सॉरी. नेक्स्ट इज steal someone's thunder. जी. मेरी आइडिया को चुराना नहीं है आपने. जी. Next. Throw someone under the bus. Throw someone under the bus. जी. मतलब to betray someone, धोखा देना किसी को. Yes. एक होता है धोखा देना, एक होता है धोखे देना. मतलब किसी चीज को धो करके दे देना कि ये भाईजान आप सेब जो है मैंने खा लीजिए, धो कर ले आया हूँ. So क्या अच्छा है? धोखे देना अच्छा है कि अच्छी बात है? धोखे देना अच्छी बात है किसी को. ऑलराइट. आगे चलें. Meaning to throw someone under the bus means to betray someone. उर्दू मीनिंग धोखा देना. Sentence. She threw her colleague under the bus to save herself. हाँ, उसने अपने कोलीग को धोखा दिया to save herself, अपने आप को बचाने के लिए. तो ये सेल्फिशनेस होती है कि किसी को अपनी गलती के लिए किसी और को बकरा बना देना, धोखा देना उसको. So throw someone under the bus.
So that's it, my dear friends. Thank you very much indeed. A fantastic job done. Really impressive. Wish you all the very best of luck. ये हमारे phrases का day था आज. We have done exclusively 30 phrases. Or they are the part of language learning. And inshallah, you will see that they will also work wonders in your language boosting and making you a confident, fluent speaker. Wish you all the very best of luck. Thank you very much indeed. And stay blessed. Thank you.